Everyone. Here is another practice set for all of you. Once again, this is a quant-based puzzle because this kind of questions are asked very frequently. As far as level of difficulty is concerned, you can call it easy, moderate set. Just make sure that you are getting all the questions correct. That's the challenge for you. Okay, and don't forget to post in the comments that how many questions did you get right. Just want to mention in the previous video that is DPP 17, there is a correction. I have posted that in the comment for question 2 there was a slight correction, so please check that. Okay, now let's look at the question, and here is the set. A particular ATM has notes of 4 different denomination. While dispensing the cash, the ATM always tries to minimize the number of notes dispensed based on the number of notes of each denomination available in the ATM. In fact, similar set has been asked in CAT exam earlier also. So that's why we have taken this. It's very practical situation. Okay, and on a particular day there were certain number of notes available. We don't know how many notes were available. There are 7 people who withdraw this money, and you are given certain information about that. Okay, so you can go through the complete data and then let me display the question. You can try them and then you can watch the solution that I have provided. You can verify your answer, and you can post in the comments how many questions did you get right. Once again, I have posted the PDF in the Telegram group. Apart from that, I have created a separate playlist for all this LRDA most important DPP questions. So YouTube पे उसका पूरा एक playlist मैंने create किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर से देखना. चलो क्वेश्चन देख लेते हैं. हु वॉज द थर्ड पर्सन टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम? सो ये आपको पता करना है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. गाइस, दिस इज 14. हाँ, सो या the total number of notes dispensed to Amit was 14. Now we don't know what is the correct order, so that is what we need to figure out. Okay, who was the third person to withdraw the cash from the ATM? तो इस सेट का मतलब अगर आपने लॉजिक डिकोड कर दिया तो ये सेट थोड़ा आसान हो जाएगा. आप शायद इसको 8 से 9 मिनट में निपटा सकते हो. बस वही है कि आपको वो स्ट्राइक करना चाहिए. Then this is the second question. What is the number of rupees 500 notes dispensed to the sixth person? Then among the person who withdraw cash from ATM after location date, to how many person were more than 500 notes dispensed? What is the number of rupees 1000 notes in the ATM at the beginning of the day? Okay, so here are the 4 questions. Now I'm assuming कि आपने इसको try कर लिया होगा. Now let's proceed with the solution. So let's see how to solve the set. Before that, guys, just want to quickly tell you this unlock offer is going on. So offer ends on 14th October. So in case if you are planning for next year's CAT, you can definitely go for that. Even for this year, if you are targeting exam like SNAP and ZAT and all, you can take a smaller subscription. So there are various options available in terms of plus and iconic, so do check that. And when you check out, don't forget to apply code SHART10 for maximum discount. Do let your friends know, and don't forget to like this video, guys. चलो अभी देखते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़ के कितने नोट्स उनको मिले होंगे वो लिखेंगे. अगर किसी को 2500 रुपये चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि एटीएम उसको 2000 रुपये का एक नोट देगा और 500 रुपये का एक नोट देगा. पर अगर उसको हमने हजार रुपए के नोट दिए और एक 500 का नोट दिया, उसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो एटीएम में गया तब तक 2000 के नोट खत्म हो चुके थे. तो ये लॉजिक है जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कौन कौन से ऑर्डर में गया है. तो अगर आपने ये सोच लिया है तो आई एम श्योर आपके ज़्यादा सारे क्वेश्चन सही होंगे. तो इसलिए मैंने कहा था कि ये इजी मॉडरेट सेट है, आप इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं कह सकते. इनफैक्ट जो कैट में भी आया था वो एक इजी मॉडरेट सेट था, तो ये सिमिलर सेट कह सकते हो. तो यहाँ पे जैसे अमित की बात करते तो अमित को टोटल 14 नोट्स मिले हैं, जिसमें से 8 100 रुपये वाले हैं. ठीक है, 3800 रुपये उसको विड्रॉ करने थे, तो उसके 800 रुपये तो यहाँ से ही मिल गए. अब 3000 रुपये बचे हैं. अब 3000 रुपये के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि एक यहाँ से दे देना चाहिए और एक नोट इसका दे देना चाहिए था. बट जब तक उसका टर्न आया होगा नोट्स खत्म हो गए होंगे, इसीलिए उसको 500 के 6 नोट दिए गए होंगे. तभी 8 + 6 आपका 14 होगा. तो हमें पता चला उसको ना तो 1000 रुपये वाला नोट मिला, ना तो उसको 2000 रुपये वाला नोट मिला. मतलब जिनको 2000 और 1000 वाले नोट मिले उसके बाद में अमित गया था. ठीक है. सिमिलरली गिरीश की बात करें, उसको 1000 रुपीज़ विड्रॉ करने थे और 1000 रुपीज़ के लिए उसको 10 नोट दिए गए हैं. द बेस्ट पॉसिबल वे शुड हैव बीन
वुड हैव बीन कि उसको 1,000 का एक नोट मिल गया, पर ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि जब तक वो एटीएम में गया होगा ये सारे नोट खत्म हो गए थे, उसको इनमें से कोई नोट नहीं मिला। ठीक है, 2,000 तो उसको मिल ही नहीं सकता, उसको ज़रूरत ही नहीं थी, उसको इसीलिए 100 के 10 नोट देने पड़े। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, फर्दर इट इज़ नोन दैट लोकेश डिड नॉट रिसीव ₹2,000 नोट। ठीक है, लोकेश को 5,300 रुपीज़ चाहिए थे, तो 5,300 के लिए क्या कर सकते थे, 3 नोट इसके दे दिए, 2 इसके दे दिए, 1 इसका दे दिया, तो 6 नोट में काम हो जाता। बट लोकेश को टोटल 9 नोट्स मिले हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब तक वो गया होगा ये 2,000 वाले और 1,000 वाले नोट खत्म हो गए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब यहाँ पे 3 तो 100 वाले नोट हो गए, तो बाकी के 6 नोट हमें इनमें से लाने हैं। तो 6 नोट कैसे हो सकते हैं, और टोटल हमें कितना चाहिए, 5,000 रुपये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 नोट 5,000 रुपये। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो 2 या 4 ही आ सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। उसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ और यहाँ पे 2 ले लूँ, ठीक है, टोटल 5,300 चाहिए ना हमें, एंड 9 नोट्स है, राइट। इसमें से 3 नोट्स तो इसके चले गए, तो हमें ये टोटल 6 लाना है ना। तो 6 आप कैसे कर सकते हो, 2 ले लो और सॉरी 4 ले लो और 2 ले लो, तो ये नहीं चलेगा। या फिर 1 ले लो, 5 यहाँ पे ले नहीं सकते, तो यहाँ पे 2 और 3 करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, हो गया 6। यस, सिंपल सा था। तो आप उसको 500 के 2 नोट दिए गए और 1,000 के 4 नोट दिए गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि उसको 5,000 रुपये के नोट दे देता, लेकिन तब तक 1,000 के नोट खत्म हो चुके थे, मतलब लोकेश जब गया तब 1,000 के कम नोट बचे थे। ठीक है ना, तो ये हमें एक ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भार्गव को 4,500 रुपये चाहिए थे और उसको टोटल 9 नोट्स मिले हैं 4,500 रुपये के लिए, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको 500 के ही 9 नोट्स मिले होंगे, इसका तो उसको कोई नोट नहीं मिला है और ये खाली हो गए होंगे। समझ में आ रहा है, ये नोट्स खाली हो गए होंगे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। सिमिलरली रोहित की बात करते हैं, तो 2,400 रुपीज़ उसको विड्रॉ करने थे, जिसमें से 4 तो 100 के नोट्स लगेंगे ही लगेंगे। अब उसको टोटल 6 नोट मिले हैं, तो 6 नोट कैसे हो सकते हैं, 2,000 रुपये के लिए 6 नोट, 2,000 रुपये के लिए 2 नोट, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसको 1,000 वाले ही 2 नोट मिले होंगे, तभी ये टोटल आपका 6 आ जाएगा। मतलब जब तक वो गया तब तक ये 2,000 वाले नोट खत्म हो गए थे और 500 वाले उसको नहीं दिए गए, क्योंकि 1,000 वाले अवेलेबल थे तो वो पहले दिए गए। सिमिलरली हरीश एंड मनीष के लिए हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हरीश और मनीष के लिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ पहले तो हरीश के लिए क्या होगा, सो हरीश को यहाँ पे 100 के 2 नोट्स मिले हैं, 2,000 का एक मिला होगा, 1,000 का कोई नहीं और इसका एक, तो ये उसका हो जाएगा 2,700 रुपये, इसका एक, इसका 0, इसका एक, इसका 2, टोटल 4 नोट्स भी हो गए। एंड मनीष के लिए क्या हुआ होगा, तो 3 नोट तो उसको इसके मिल गए हैं, 6,300 उसको विड्रॉ करना था, 3 नोट 100 के हैं, अब बचे 6,000 रुपये एंड नंबर ऑफ नोट्स बचे हैं 4। ठीक है, सो डेफिनेटली उसको 1,000 एंड 2,000 के मिले होंगे, तो अगर मैं उसको 2,000 के 2 नोट दे देता हूँ एंड 1,000 के 2 नोट दे देता हूँ तो उसका काम हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हमारे 7 नोट्स भी आ जाएंगे और उसको टोटल 6,300 रुपये उसके हो गए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इससे हम पता कर सकते हैं कि भाई गिरीश को छोड़ के बाकी सबको 2,000 के नोट की ज़रूरत थी। जैसे इसमें भी 2,000 का नोट दिया जा सकता था, इसमें भी, ये सब में दिया जा सकता, बट नहीं मिला है। मतलब हरीश एंड मनीष जो है वो पहले 2 में है और ये फिर 3 से 7 में है, ये तो हमें पता चल गया। अब गिरीश को तो एक्चुअली 2,000 के नोट की ज़रूरत ही नहीं थी, तो कैसे कह सकते हैं कि गिरीश बाद में गया होगा। तो दोस्तों अगर आप देखोगे गिरीश को कितना रुपया चाहिए था, तो गिरीश को 1,000 रुपये चाहिए थे। ठीक है, तो 1,000 रुपये के लिए उसको 1,000 की ही सीधी एक नोट दे देते, लेकिन तब तक 1,000 की नोट भी खत्म हो चुकी थी, है ना। तो 500 की नोट भी दे सकते, 500 की भी खत्म हो चुकी थी, मतलब वो डेफिनेटली हरीश एंड मनीष के बाद में ही गया, क्योंकि मनीष को देखो 1,000 की नोट मिली है, हरीश को 500 की भी मिली है। तो गिरीश जब तक गया था तब तक
तो वो 1000 और 500 वाले नोट भी खत्म हो चुके थे, इसलिए एटीएम ने उसको 100 रुपए वाले नोट दिए हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमें पता चल गया। अब सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हरीश और मनीष में कौन पहले गया होगा। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि मनीष जो है उसको हम सीधे सीधे 3 नोट 2000 के दे सकते थे, लेकिन जब मनीष का टर्न आया तब तक 2000 के नोट खत्म हो चुके थे, सिर्फ 2 बचे थे, तो इसलिए उसको 2 नोट दिए गए। ठीक है ना, उसका मतलब ये हुआ कि हरीश मनीष से पहले गया होगा, क्योंकि अगर सपोज हरीश बाद में जाता तो मनीष को ही ये तीनों नोट मिल जाते, हरीश को 0 मिलता है ना। तो इससे हमें पता चला कि हरीश वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू द एटीएम मशीन, देन सेकंड वॉज मनीष। तो ये इनका तो हमने निपटा दिया। अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें 1000 रुपए की नोट से डिसाइड करना होगा कि भाई 1000 रुपए की नोट किसको मिली है। तो 1000 रुपए की नोट लोकेश को एंड रोहित को मिली है, तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक 3 और 4 पोजीशन पे गया है, क्योंकि बाकी सबको भी तो 1000 रुपए के नोट की जरूरत थी। ठीक है, उनको नहीं मिली है, तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे किसको मिली है। अब देखो, लोकेश को हमने 2 500 की नोट दे दी है, उसकी जगह पे हम 1000 की नोट दे सकते थे, 4000 की नोट दी उसकी जगह पे 5000 की नोट दे सकते थे। ठीक है, 5 नोट्स ऑफ 1000 दे सकते थे। तो उसका मतलब ये हुआ कि लोकेश जब तक गया तब तक 1000 की नोट सिर्फ 4 ही बची थी, तो इसका मतलब ये हुआ रोहित पहले गया था लोकेश से, तो यहाँ पे थर्ड रैंक नंबर आ जाएगा, ये 4th पोजीशन आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आप बाकी के लोगों का ऑर्डर पूरा फिक्स कर सकते हो। जैसे अगर हम आगे बात करें, भार्गव, गिरीश एंड अमित, आपको पता है कि गिरीश सबसे लास्ट में गया होगा, भार्गव एंड अमित में से पहले कोई गया होगा। अब देखो, अमित को 800 की नोट दी गई है, जबकि उसको 800 रुपए की नोट देने की जगह पे एक 500 की और 300 की दे सकते थे, पर जब उसका टर्न आया तब 100 की नोट थोड़ी सी ही बची थी, तो ये डेफिनेटली आपका 6th आएगा। ठीक है, ये 5th आना चाहिए और ये 6th आना चाहिए, और गिरीश सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि उसको कोई भी 500 की नोट नहीं मिली। सो ये है इनका करेक्ट ऑर्डर। अब ये टेबल के बेसिस पे आप पूरे सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए आ जाएगा, फिर ये वाला है उसका ऑप्शन सी आ जाएगा, फिर इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, एंड लास्ट वाला जो है उसका सी आ जाएगा। ठीक है, जैसे व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ 1000 रुपीज नोट्स इन द एटीएम एट द बिगिनिंग, तो टोटल 1000 रुपीज के कितने नोट्स थे, तो यहाँ पे हम टेबल से देख सकते हैं कि भाई 1000 के हमारे कितने नोट्स है टोटल, देखो 8 नोट्स है, ये हमें पूछा था। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट से एक अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी। कीप लर्निंग विद मी, एंड यूट्यूब पे मैं एक और वीडियो रिलीज कर रहा हूँ कि LRDI सेक्शन को अप्रोच कैसे किया जाए, जिसके लिए एक स्ट्रेटेजी मैंने डिजाइन करी है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप आगे के 45 डेज में उसको यूज कर सकते हो, खास करके अगर LRDI में अभी भी ऐसा होता है कि आप सेट पिक करते हो, सेलेक्ट करते हो और बाद में छोड़ना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, तो वो वीडियो जरूर से देखना। छोटा सा स्ट्रेटेजी वीडियो होगा, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। कीप लर्निंग विद मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।